پاکستان نے آج لگاتار چوتھے روز سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان نے پنچ کے قصبہ کیرنی، شاہپور اور بنڈی چھیاں سیکٹر میں شدید گولہ باری کی۔ پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری میں 2 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں 27 برس کی ایک خاتون اور ایک 13 سالہ بچہ شامل ہے۔ مہلوکین کی شناخت گلناز اور شعیب کے طور پر ہوئی ہے۔ زخمیوں کو راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستانی گولہ باری کی وجہ سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں میں کافی دہشت پائی جا رہی ہے۔ فوج نے بھی پاکستان کی اس اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے آج ایک بار پھر پنچ کے قصبہ شاہپور کرنی کو نشانہ بنا کر بھاری گولہ باری کی جا رہی ہے، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور لگاتار گولہ باری جو ہے وہ گاؤں کے اندر گر رہی ہے اور کئی گولے جو ہیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں کہ گاؤں پہ گر رہے ہیں۔ ہار 2-3 دن کے بعد تو لگاتار ہی چل رہی ہے، پرسوں بھی ہوئی، کل تھوڑی چھوڑ دی تو آج پھر زبردست چالو ہے۔ ہمارے مال چوکھر جو بھی ہے، پشو بچے اسکول میں، ابھی اسکولوں میں بند ہیں، ابھی کوئی بچے جو ہے اسکولوں میں بند ہے، کوئی بھی گھر نہیں پہنچے ہیں، تو ہم اتنی پریشانی میں ہیں سر۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ چھپنے کے لیے بنکر دیے جائیں اور سب سے پہلے تو اسکولوں میں بنکر دیے جائیں، کیونکہ وہاں بچوں کو پریشانی ہے، کیونکہ جو بچے ہیں ابھی ان کو لے نہیں سکتے ہم، کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں چھپنے کے لیے تو چاہیے، ٹین کے شیڈ ہیں سبھی۔ بہت گولہ باری ہو رہی ہے کیرنی اور گتری میں، سب سے زیادہ شاپر میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے سر، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ سیفٹی ملنا چاہیے رہنے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، لیکن کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ اوپر والے کا سہارا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ کیا کریں گے؟ مریں گے تو وہیں مریں گے، جئیں گے تو وہیں جئیں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ان لوگوں غریب لوگوں کو کوئی بنکر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے بچے جو ہیں سب اسکولوں میں بند ہیں، سائیں بابا اکیڈمی ہے، زیا اکیڈمی ہے گتریاں میں، بگنوں میں اکیڈمی ہے، طارق اکیڈمی، ابھی سب بچے جو ہیں اپنی اکیڈمیوں میں اندر ہی بند رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ اب نہ تو ہم ان کو لا سکتے ہیں تو نہ ہی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کہیں ان کے پاس بنکر ہو تو چلو وہ آرام سے بیٹھیں گے۔ ہم بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہاں پہ آ کے گولہ لگا، جس کی وجہ سے یہ ادھر سے بھی زخمی ہوئے، اور ایک عورت تھی یہاں پہ وہ بھی زخمی۔ ابھی ہم نے گاڑی ایمبولینس میں ڈالی، اچھا ہوا کہ ایمبولینس ٹائم پر موقع پر ملی تو ہم نے اس میں بھیج دیا۔ بہت تباہی ہوئی ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں، بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے کہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی مورچہ ہے کہ جس میں ہم جا کے گھسیں، نہ ہی کوئی اسی طرح کا کوئی انتظام کیا ہوا۔ یہاں ہائی اسکول کے کم سے کم 300-400 بچے، 300-400 بچے سب وہ تینوں میں چھپے رہے، پھر ایک 2 کر کے ایڈمٹ نے ایچ ایم نے جو ہے 2 4 بچوں کو نکال کے ان کے گھر والوں کو فون کر کے بلایا، ان کو بلا کے ان کے ساتھ لگایا، لیکن بہت بڑا رسک ہے۔ اسکول کے ساتھ کوئی بھی ایسا جو ہے سیفٹی کے لیے کوئی بینکر نہیں بنا ہوا ہے۔ کشتواڑ پولیس نے فوج اور CRPF کی مدد سے ایک ملیٹنٹ کو گرفتار کیا ہے۔ ملیٹنٹ کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملیٹنٹ کی شناخت وانی محلہ سندرداچھن کے رہنے والے طارق حسین وانی کے طور پر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک حالہ جنگلات میں تلاشی مہم کے دوران ایک عارضی پناہ گاہ سے طارق حسین کو گرفتار کیا، جس کے بائیں پیر پر گولی لگی تھی اور اسے علاج کے لیے ضلع اسپتال کشتواڑ منتقل کیا گیا۔ ملیٹنٹ کے قبضے سے ایک رائفل، ایک میگزین، 64 کارآمد کارتوس اور 11 چارجر کلپس برآمد کی گئی ہیں۔ جب ہم نے وہ ویڈیو فوٹیج لی تھی کچھ جگہوں پہ جن سے مجھے بند کر ابھی تک یہی کا ساتھ ہے۔ بارہمولہ میں دکانوں کو نظر آتش کر کے لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کے الزام میں 4 مقامی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ SSP بارہمولہ عبدالقیوم نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں پیش آئے آتش زد کی واقعے کی جانچ کے دوران CCTV فوٹیج کی بنیاد پر چند نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا۔ پوچھ تاچھ کے بعد 4 نوجوانوں جو کہ دکاندار بھی ہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی جانچ میں پتہ چلا ہے کہ دکانوں میں آگ لگانے کے ذریعے نہ صرف کاروباریوں میں ڈر کا ماحول پیدا کرنا تھا بلکہ اس بہانے اپنی دشمنی بھی نکالنا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا، اس واردات میں ابھی تک 4 لوگ اریسٹ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ 3 لوگ وہ ہیں جن کی اپنی خود کی دکانیں یا بزنس ہے، چوتھا وہ ہے جو سیلز مین ہے دکان کا۔ تو ابھی تک جو ہماری یونیورسٹی اس میں یہی سامنے آیا کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ مارکیٹ بند ہو جائے۔ ان میں سے 2 لوگوں کی دکان انٹیریئر میں ہے،
क्योंकि जब आपको पता है यहाँ पे दुकानें बंद थी तो इंटीरियर में ज़्यादा रश होता था। जब मेन मार्केट खुल गया तो इंटीरियर वालों की सेल्स इफेक्ट हुई, तो नेचुरली चाहे कि मार्केट बंद हो जाए उनकी सेल्स में। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सब जगह जैसे श्रीनगर में है या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में दुकानें बंद थी, यहाँ क्यों खुली, यहाँ भी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये हमें अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। दिन में उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा उसी दिन, उसकी भी हमारे पास फुटेज है, किसने ख़रीदा, किस पे सिक्योरिटी पे गया। और शाम को भी जब उन्होंने आग लगा दी फिर ये वापस ब्रिज की तरफ से भाग गए, वो भी हमारे पास फुटेज मिल गई थी, जिससे हमने इनकी आइडेंटिफाई करके इनको दर दबोच लिया सबको। बहरहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे, आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें और चलेगी, अपने नतीजे तक केस पहुँचा देंगे हम बिल्कुल फेयर तरीके से। कुछ मिलिटेंट रिलेटेड जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? अभी तक इसमें मिलिटेंट रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक डर का माहौल पैदा हो गया था टाउन में, तो वो हम लोगों को आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करना सकते हैं। वो ये इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं है, ये सिर्फ यही राइवलरी है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे जो शॉपकीपर दुकानदार साहिबान हैं, उनका जो अपना स्टाफ है, पर्टिकुलरली जो उनके ये सेल्समैन हैं, उनका वो खास ख्याल रखें, क्योंकि उसके बारे में कुछ खबरें आ रही हैं कि ये जो यहाँ पे जो धमकियाँ मिल रही थी दुकानदारों को या बंद कर, उसमें उन सेल्समैनों का हाथ है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस पर भी उन लोगों को बेनकाब करेंगे। वो सेल्समैन ग्रुप कौन कौन सा है जो इन दुकानदारों को खुद ही अपने मालिकों को तंग कर रहे हैं। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना सेक्टर में बर्फानी तोदे गिरने का वाकया पेश आया। 4 फौजी जवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे, जिनमें से एक जवान को बचा लिया गया। एलओसी के करीब ईगल पोस्ट पर बर्फानी तोदा गिरा है। फौज की जानिब से बचाव कार्रवाइयां जारी हैं, ताहम बर्फ की मोटी तह रहने से बचाव कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिरी इतलात मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए इस वाकये की तस्दीक की है। लोकसभा में वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वाक़यात के हवाले से बयान दिया है। वजारत ममलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 19 अफराद मारे गए हैं, जिनमें गैर मकामी मजदूर और आम शहरी शामिल हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से 27 नवंबर के दरमियान दहशतगर्दी के 88 वाक़यात पेश आए हैं। दूसरी जानिब सरहद पार से दरअंदाजी के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। रेड्डी ने कहा कि रवा साल 114 मरतबा दरअंदाजी की कोशिश की गई। वजारत दाखिला ने यह भी कहा कि 2019 में अब तक 157 दहशतगर्द मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में हालिया पाबंदियों के तनाजुर में वहाँ की मईशत को नुकसानात होने के ताल्लुक से सवाल पर वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत को इस मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंतजामिया से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। लद्दाख को आईन हिंद की 6वीं शेड्यूल में शामिल करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि नेशनल कमीशन बराए शेड्यूल ट्राइब्स ने लद्दाख को 6वीं शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की है। ताहम जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत नई यूनियन टेरिटरी में खुद मुख्तारी पहाड़ी काउंसिल का निफाज बरकरार रहेगा और इस काउंसिल को भी 6वीं शेड्यूल के ममासिल इख्तियारात हासिल हैं। वादी कश्मीर में रोज बरोज हालात मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दोपहर तक खुले रहे। इस दौरान निजी गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल लगभग सभी रास्तों पर बढ़ गई है। उधर कश्मीर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज मुसलसल बंद है। वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात न होने से ताजिर तबके को जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए दुश्वारियों का सामना है। हालिया सूरत हाल से जहां तिजारती सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासर हुई, अब जीएसटी फाइल करने को लेकर ताजिरीन जो है फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद मुअत्तल की गई इंटरनेट खिदमात अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। हालांकि वादी में हालात किसी हद तक मामूल पर लौट गए हैं, ताहम इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से मुतासिर न हुआ हो, लेकिन फिलहाल ताजिर तबका इस सर्विस के न होने से सबसे ज्यादा परेशान है।
ताजरीन को नवंबर के अख्ताम तक GST और इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने के लिए कहा गया था। इंटरनेट खिदमात पूरी तरह मुयसर न रहने से बेशतर ताजरीन इस डेडलाइन पर अपना GST दाखिल नहीं कर सके। हालांकि जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंटरनेट सहूलियात फराहम की गई हैं, लेकिन ताजरीन की शिकायत है कि इन मराकिज़ पर हुजूम की वजह से वो मुआयना वक्त पर GST अदा नहीं कर सके, जबकि बाज़ अफराद ने पड़ोसी रियासतों में जाकर अपनी ये जिम्मेदारी अंजाम दी है। डेडलाइन वेडलाइन हम क्या करेंगे जब इंटरनेट ही चल रहा है ना, हमारा नेट ही नहीं चल रहा है, हमारा जो कनेक्शन है वो चल नहीं रहा, तो हम कैसे भरेंगे? इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। We cannot go to DC office, be in a queue. Sometimes it takes 4 to 5 hours to fill a return, GST return. तो DC ऑफिस में जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, कैसे करेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल। नेट वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम ज़ीरो है, सेल्स में भी, परचेज में भी। हमारा बैलेंस शीट जो है ज़ीरो जा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ग्रोथ नेगेटिव में है। जब इंटरनेट ही बंद है तो कैसे चलेगा? और एटलीस्ट इनको देना है हमको एटलीस्ट 1 महीने या 15 दिन, और जब हम GST भर सकते हैं। ऐसे मत काम चलेगा। एज द आपको देखना पड़ेगा लोगों के भी क्या क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। सो आधे तो बड़े आदमी नहीं है, वो जम्मू जाएंगे ईमेल करने, दिल्ली जाएंगे ईमेल, फेयर देखो कितना हो गया है। सो इनको गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा, फर्स्टली देखना पड़ेगा ये करना। सर देखिए, डेडलाइन तो गवर्नमेंट को एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा प्रोसीजर होता था, हम ऑन टाइम भरते थे GST। अब उसमें गवर्नमेंट ने प्रोसीजर रखा है कि उसमें अब लेट फीस, बट फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स हमें लेट फीस भरना पड़ता है। तो एज सून एज पॉसिबल गवर्नमेंट को एक तो वो लेट फीस जो है वे वेव ऑफ करना चाहिए, और इंटरनेट प्लीज़ एंड प्लीज़ इंटरनेट हमारा रेस्टोर कर दीजिए। ताजिर तबके के मुताबिक गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान इन्हें करोड़ों रुपए का खसारा हुआ है। कश्मीर के तिजारती इदारे KCCI का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स और GST दाखिल करने की डेडलाइन में इजाफे के लिए मुतल्लिका महकमों से नुमाइंदगी की गई है। साथ ही देर से GST अदा करने वाले ताजिरों के जुर्माने भी माफ़ करने की गुजारिश की गई है। KCCI के सदर शेख आशिक अहमद ने वादी में इंटरनेट खदमात या कम से कम ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल करने की अपील की है। हमने रिक्वेस्ट किया GST ऑफिशियल से कि इसको एक्सटेंड करें, जो अप्लाई भी करता है उसको पेनल्टीज़ आती है। हमने जब ये एडवाइजरी हो गया, रिस्ट्रिक्शंस आ गई, हमने उसी वक्त कहा था कि टेक्निकल इश्यूज़ विल फॉलो। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज़ अभी आ रहे हैं, आप इनकम टैक्स फाइलिंग में देखिए, आप ROC फाइलिंग में देखिए, हर जगह प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम और पेनल्टीज़ पे पेनल्टीज़ आ रही है। ये पेनल्टीज़ क्या, एक जो बेचारा एक बिजनेसमैन जो बंद हो गया, विद द रिज़ल्ट एडवाइजरी आ गई, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई, वाई शुड ही पे, व्हाट्स हिज फॉल्ट, उसका क्या कसूर है? तो गवर्नमेंट को मैंने पहले भी कहा कि उनको खुद एक कॉल लेनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं इनको और तंग ना किया जाए, इसको एक्सटेंड करें। हमने इनकम टैक्स में जो हमने ऑफिशियल्स हो, वो फाइनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनसे भी बात अभी कम्युनिकेशन एक एस्टेब्लिश की है कि इन सब चीज़ों को एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इन मुश्किलात से बाहर आ जाए। हालांकि GST अदा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ताहम अभी भी कई ताजिर इंटरनेट न रहने से ये काम नहीं कर पाए हैं। ताजरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतजामिया इनके मसाइल को समझते हुए इस ताल्लुक से कोई मुनासिब कदम उठाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में आज कई सरपंचों और पंचों ने 7 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे ये सरपंच और पंच मनरेगा के तहत काम करने वाले ठेकेदारों के बकायाजात वागुजार करने का मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए तमाम सरपंचों और पंचों को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 करोड़ से ज़्यादा लाइबिलिटी जो है MG नरेगा की बनी हुई है। हम लोगों ने लीगल नोटिस जो है वो सरकार को आज से 25 दिन पहले जो है वो दे दिया था, और 15 दिन का टाइम हम लोगों ने सरकार को दिया था लीगल नोटिस में कि सरकार जो है जितनी भी लाइबिलिटी बनी हुई है, जो लोग दिहाड़ीदार लोग हैं जिन्होंने दिहाड़ी लगवाई है, जो मिस्त्री की पेमेंट है, जो मटीरियल पेमेंट है, तमाम पेमेंटें जो है 15 दिन के अंदर क्लियर की जाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट सरकार ने जो पेमेंट जो है वो क्लियर
نہیں کی. ہم لوگوں کو جو ہے ڈیسیزن لینا پڑا, بڑا ہارڈ ڈیسیزن جو ہے وہ لینا پڑا کہ جہاں ہم آج جو ہے بھوک ہڑتال پہ جو ہے وہ بیٹھے ہیں 24/7 اور ہم لوگ 3 دسمبر کو آج جہاں بیٹھ رہے ہیں اور 10 دسمبر تک ہماری جہاں بھوک ہڑتال چلے گی. شیو سینا بالا صاحب ٹھاکرے کے کارکنوں نے جموں میں احتجاجی مظاہرے کیے. سینا کے کارکن ٹیلی کام کمپنیوں کی طرف سے کال شرحوں میں اضافہ کرنے کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. احتجاجی کارکنوں نے مرکزی سرکار کا علامتی پتلا نظر آتش کیا. سینا کے احتجاجی مرکزی سرکار سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ ان کمپنیوں کی طرف سے بڑھائے گئے داموں پر روک لگوائے. انہوں نے اپنے ٹیرف پلان کے اندر 25 سے 40% کی وردھی کر دی ہے. ہمارا ماننا ہے کہ یہ بڑھوتری کیندر سرکار کے سرکشن کے بنا, مودی سرکار کے سرکشن کے بنا بالکل بھی سمبھو نہیں تھی. سرکار کے تمام نیتاؤں منتریوں کی چپی نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سرکار. مختلف مقامات پر کئی سرکاری تقریبات کا اہتمام کیا گیا. معذورین کی جانب سے آج یوم سیاہ منایا گیا. معذورین ڈسیبلٹی ایکٹ کو نافذ کرنے اور انہیں تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں. پیش ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی رپورٹ. پریس کالونی سری نگر میں معذورین کے عالمی دن کی صبح جسمانی طور پر ناخیز افراد کے احتجاج کے ساتھ شروع ہوئی. ان افراد نے مقامی انتظامیہ کے خلاف احتجاج کے طور پر آج کے دن کو یوم سیاہ منایا. ان افراد نے ڈس ایبلٹی ایکٹ کو نافذ کرنے اور تعلیم و روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی مانگ کی. مظاہرین نے لال چوک تک مارچ نکالا اور مقامی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے. ان کا کہنا ہے کہ طویل مدت سے وہ اپنی صدا بلند کر رہے ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے. معذورین کے مطابق ایل جی سے ملاقات کی کوششوں کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. گراؤنڈ لیول پہ کام ہونا چاہیے, وہ کہیں پہ ہو نہیں رہا ہے. اب دیکھیے گراؤنڈ لیول پہ میں اگر بلائنڈ ہوں, میرے کو لال چوک میں کہیں جانا, اب دیکھیے میرے لیے ٹیکٹائل نہیں ہے. میرا جو دوسرا بھائی ہے ویل چیئر والا, وہ تو لال چوک میں گھوم ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ دیکھیے کہ کہاں پہ گاڑیاں تو 20 سڑک میں ہوتی ہے. میرے کو گھر جانا ہے آفس سے, تو میں تو وہ نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ فنکشن کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ہمیں مطلب جب یوٹی بنی ہے تو ہمیں مطلب لگ رہا ہے کہ مطلب شاید مطلب ہمارے لیے کچھ ہو جائے گا, مگر اب مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ مطلب ہم نے ایل جی کے ساتھ مطلب دو تحریری طور پر اس کو لیٹر بھیجی ہے. جب وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں آتی ہے اور یہاں مطلب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے. تو آج کالا دن منا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے جتنے بھی ہینڈی کیپ ہیں آج تک یہاں کی جو لوکل سرکاریں تھی, فاروق عبداللہ سرکار یا مفتی سرکار, انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کیا اور ہمیں دھوکہ دیا. آج آپ دیکھیں کہ کتنے پڑھے لکھے, کتنی مشکل کو اس بات مجھے مطلب 80 سے 100% میں ڈسیبلڈ ہوں, لیکن آج پڑھ لکھ کر میں بے روزگار ہوں. میں گھر میں پریشان ہوا ہوں کہ میں نے کیوں پڑھا, کیوں میں نے تعلیم کی. پریس کالونی سے صرف 1 کلومیٹر دور محکمہ اطلاعات اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے رنگا رنگ کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا. ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان اور دیگر مہمانوں نے اس میں شرکت کی. اس دوران معذورین کے ساتھ بہتر سلوک کے لیے شعور بیداری ڈرامے اور دیگر ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے. تاہم ڈس ایبلٹی ایکٹ کے حوالے سے کچھ بات نہیں ہوئی. ڈویژنل کمشنر نے اپنے خطاب میں معذورین کا ڈیٹا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت پر زور دیا. جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ 2011 کا ہے اور اس کے بعد کتنا اس میں فردر ایڈیشنز ہوئے یا اس میں ویڈ آؤٹ ہوئے, اس کو پراپرلی دیکھنے کی ضرورت ہے. نیوز 18 اردو نے محکمہ سوشل ویلفیئر کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے جب معذورین کے احتجاج کا موضوع اٹھایا تو انہوں نے کیا کچھ کہا, آپ بھی سنیے. چیلنج لوگ ہیں نا, وہ آج بلیک ڈے منا رہے ہیں. یہاں پہ پریس کالونی میں بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کی تکلیفیں ہیں ان کو دور نہیں کیا جاتا ہے. دوسرا جو ڈسیبلٹی ایکٹ ہے اس کو ابھی تک لاگو نہیں کیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اب چونکہ میں نے حال ہی میں یہ عہدہ سنبھالا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ہم وہاں پہ ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ان سے ناانصافی کی بات نہیں ہے. لیکن ان سے کہیے کہ ان کے جو آگے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے والے ہمارے آفس میں آئے, ہمارے جو بھی ان کی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم فرسٹ پریفرنس دے کے ان کا وہ معاملہ حل کر رہے ہیں. ہر سال معذورین کے عالمی دن پر تقریبات کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن ان افراد کے جو حقیقی مسائل ہیں اسے حل نہیں کیا جاتا ہے.
माजूरीन को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने से इनकी जिंदगियों में भी मुस्बत तब्दीली आएगी, ताहम अभी तक तो इन्हें ऐसी कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के मौके पर कस्बे पुलवामा में माजूर अफराद ने अपने मुतालबात को लेकर ढोल बजाकर अनोखा एहतजाज किया। यह एहतजाजी रैली पुलवामा पार्क से डीसी ऑफिस पुलवामा तक निकाली गई। एहतजाजियों ने कहा कि ढोल बजाने का मकसद हुकूमत को उनकी जायज़ मांगों से वाकिफ कराना था। माहाना वजीफे को बढ़ाना और बाकी मुतालबात पूरा करना एहतजाजियों के मुतालबात में शामिल है। खेलकूद के हवाले से भी आज तक महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है सर, तो भी हमको सर ढोल बजाने के आना पड़ा, यहाँ पे मजबूर हो गए हम यहाँ पे रोड पे आने के लिए। एक बात है सर, हमारा जो हैंडीकैप का क्या, अगर हमारा यूटी बन गया तो हमारे को 3000 रुपये मिलना चाहिए पेंशन। दूसरी हमारा मुताला है सर कि हमारा अगर नरेगा का इनने दिया 100 दिन हमारे लिए, वो भी हमारे को नहीं मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको फ्री कंप्यूटर मिले, फ्री एजुकेशन मिले, स्कॉलरशिप मिले, बाकी जो बहुत सारी स्कीम मोटराइज्ड लाइसेंस मिले। हम यही चाहते हैं, हमारी ज़बानी बात हमारी नहीं सुनी जा रही कहीं, इसलिए हमने आज ब्लैक डे मनाया, हमने ढोल बजा के आप ये प्रोटेस्ट कर। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के तहत चलने वाली स्कूल की जानिब से खसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में माजूर तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तलबा ने ड्रामे पेश किए, मौसीकी और रक्स में हिस्सा लिया और तालमी मुजाहरे भी पेश किए, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के तहत चलने वाले इस स्कूल में कई तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर तलबा की तालीम के साथ उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचान कर उसे निखारा जाता है। तलबा तालिबात के मुताबिक वो पहले खुद को कमज़ोर समझते थे और समाज से दूर रहने को तरजीह देते थे, लेकिन अब हालात में बदलाव आया है और वो भी आम अफराद की तरह मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसे बच्चे हैं बहुत से ठीक हो के जो आप काम भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में लेते हैं हिस्सा, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में या बास्केटबॉल में। तो इससे मतलब उनके वालिदैन को भी काफ़ी फ़र्क तो हुई कि बच्चे अब पहले कुछ कोई सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, अब वो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। अब आप देखोगे हम बच्चे हैं इस वक्त वो ड्रामाज में ही पार्ट लेते हैं, हालांकि सुनते बोलते नहीं थे, लेकिन अब बोलने का भी उनके में आ गया हिसाब। ये हमारे से कोशिश हो रही है, बाकी अल्लाह ताला ख्याल करे सब। पहले तो मैं नॉर्मल स्कूल में थी, फिर क्या हुआ कि वहाँ टीचर्स का मतलब बिहेवियर भी बदल गया मेरे साथ, इतना स्ट्रिक्ट हो गया, मैं बर्दाश्त से बाहर वाला मामला। तो फिर मुझे विजन प्रॉब्लम भी हो गई और फिर मैं जाती थी डॉक्टर्स के पास। उन्होंने कहा आप अगर चाहते हो ये आगे पढ़े तो इसको स्ट्रेस कम करो। मुझे ये सब अच्छा लगता है, इवन मुझे शौक़ है अंदर से, मुझे अच्छा लगता है कि मैं परफॉर्म करूं, लेकिन मुझे चांस ही नहीं देते थे तो मैं परफॉर्म भी नहीं करती थी। मुझे कोई स्टेज पे चढ़ने का चांस नहीं देता था। अब यहाँ सब चांस देते हैं तो मैं भी चढ़ सकती हूँ। जैसे मैं गिर गई, मुझे टांगों में जान मान कुछ भी नहीं थी और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, अब मतलब मेरे टांगों में जान आएगी। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा। अब मुझे मतलब लग रहा हाँ मैं चल पाऊँगी, मैं उठ पाऊँगी। यहाँ पे मुझे मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आते हैं हम इनको इनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है। पहली बात इनका बिहेवियर चेंज होता है और हम इनको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट एक्टिविटीज़ में कराते हैं ताकि बाहर के लोगों को भी पता चले कि ये बच्चे किसी से कम नहीं है, स्पेशल बच्चे, स्पेशल केयर चाहिए और ये सब कुछ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पेरेंट्स का कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, तो हम पेरेंट्स से भी कनेक्टेड होते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आए और ये सोशेबल हो। के बावजूद दूसरों के जख्मों पर मरहम करने को अपना फर्ज बना देते हैं। अनंतनाग के जावेद अहमद टाक इसी की एक मिसाल है। पेशे मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी शोरिश ने हजारों खानदान उजाड़ कर रख दी है। इस दौरान कई लोग उम्र भर के लिए माजूर हो गए हैं। बिजबिहाड़ा अनंतनाग के जावेद अहमद टाक 1996 में गोलियां लगने से अपनी रीढ़ की हड्डी गंवाने के बाद अपनी टांगों से ही महरूम हो गए, लेकिन जावेद ने अपनी जिस्मानी कमजोरी को अपने ख्वाबों की उड़ान में रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने जैसे लोगों की फलाह बहबूद के लिए
अकेले ही कमर कस ली। टाक ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ऐसे चीज़ मैंने चुने जैसे कि बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को पढ़ाना, तो उसी ने मुझे एक जीने की राह दिखाई। मैंने माजूर बच्चों के लिए पहले ट्यूशन स्टार्ट किया, उसके बाद एक स्कूल स्टार्ट किया जिसमें इस वक्त करीबन 103 बच्चे हैं और कुछ बच्चे पास आउट भी हुए जो इस वक्त 12th में है, 10th में है, और कई तो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरियां भी हासिल की। माजूरियत अल्लाह ताला का एक चैलेंज है, अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हिम्मत जुटाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जावेद कई बरसों से जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर करना जावेद की जिंदगी का अहम मकसद बनकर रह गया है। जावेद टाक के इस काम को न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा, बल्कि मुख्तलिफ हलकों से आज तक उनकी काफी पजराई भी हुई है। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट के बारे में सुना है जो जायद साहब चला रहे हैं, तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ हमने अपनी एजुकेशन शुरू की है। तो हम जायद साहब हमें इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हमें अब लग रहा है कि हम भी नॉर्मल बच्चों से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये सही में सच में एक इंस्पिरेशन है पूरे उन अफराद के लिए जो जिस्मानी तौर, जहनी तौर या किसी और तरीके से माजूर है। ऐसे अफराद जब सामने आ जाते हैं अपनी डिसेबिलिटी को बालाए ताक रख के और समाज में कुछ करने की उनकी चाह होती है, तो ये ज़ाहिरी तौर पे, यकीनी तौर पे बाकियों के लिए एक मशअल राह बन जाती है। एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा अफराद कश्मीर में जारी शोरिश के शिकार होकर मुख्तलिफ जिस्मानी कमजोरियों के शिकार होकर रह गए हैं। टाक अपने सफर में दीगर मुताल्लिकीन के ताउन के भी मुतमन्नी है। बड़ी तादाद है, एक तो जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में मुब्तला हुए हैं, माइनस का शिकार हुए हैं, जिनकी टांगें कट गई, बाजू कट गए, पैलेट इंजरी की वजह से नाबीना हो गए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी मेंटल इलनेस हुई क्योंकि उन्होंने ऐसे वाक़ात देखे जिनमें वो बड़ी मुश्किलात में दो चार हुए और साइकेट्री पर दारोमदार रखते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो, क्योंकि रिहेबिलिटेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो रिहेबिलिटेशन सिर्फ ये नहीं है कि किसी को व्हील चेयर दे दे, किसी को ऐनक दे दे, किसी को कोई एड्स एंड एप्लियंसेस दे दे, बल्कि पहले तो समाजी तौर पे उनको एम्पावर करना, इमोशनल तरीके से उनको एम्पावर करना, और उसके बाद जो इक्तिसादी एम्पावरमेंट है कि उनको रोज़गार के लिए कुछ मौके फराहम किए जाए। जावेद टाक के मुताबिक सरकारी दफातर और दीगर इदारों को स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए भी ज़मीनी सतह पर ताहाल कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। DIG जनूबी कश्मीर उत्तल कुमार, DC अनंतनाग खालिद जहांगीर, सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी राफिया खाकी के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की एक खासी तादाद भी तकरीब में मौजूद रही। तकरीब का एहतमाम महकमे समाजी बहबूद और ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से मुनक्किद हुई। जिला सोशल वेलफेयर अफसर डॉक्टर पीरजादा फरहत और ह्यूमैनिटी वेलफेयर के चेयरमैन जावेद टाक भी मौजूद रहे। आज जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से बांडीपुरा में कोई तकरीब मुनक्किद न करने पर हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी नज़ीर अहमद ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि पहली बार बांडीपुरा में इस दिन पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। उनका कहना है कि इससे ये इंदिया मिलता है कि यहाँ हुक्काम को जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की कोई परवाह नहीं है। पूंछ में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी के दौरान फौज ने आम शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। न्यूज़ 18 के पास फौज के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं। टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोलाबारी के बीच फोर्सेस ने स्कूली बच्चों और दीगर अफराद को गाड़ियों में बिठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा मजीद तफसीलात बता रहे हैं।
पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह से लगातार पुंछ के कस्बा किरनी शाहपुर यहाँ तक कि बांडी चीजें जो कि LOC से काफ़ी दूर है वहाँ पर गोलाबारी की गई, जिस गोलाबारी में कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोग जो है स्कूल के बच्चे और कई लोग फंसे हुए थे, जिनको पुंछ पुलिस ने आज जो है अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में से निकाल कर लाया है। आप देखिए किस तरह ये गाड़ी भरी हुई है और अब इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी में बच्चे हैं, स्कूल के टीचर हैं और जो गाँव के लोग हैं जो फंसे हुए थे, उनको पुलिस जो है सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने के लिए लगी हुई है। जहां सेना जो है तो पाकिस्तान का मुंह तो जवाब दे रही है, वहीं पुलिस जो है लोगों को बचाने में लगी है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 LOC किरनी पुंछ। श्रीनगर लेह शाहराह बंद रहने से सैकड़ों मुसाफिरीन और ड्राइवर्स दरमांदा है। हालांकि मकामी इंतजामिया की जानिब से दरमांदा अफराद की मदद की जा रही है, ताहम मनफी दर्जे हरारत में लोगों का बुरा हाल है। लोग जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। पेश दराज से नूरुल इस्लाम की खास रिपोर्ट। खित्ता लद्दाख को वादी से जोड़ने वाला वाहिद सड़क राब्ता जोजिला पास इन दिनों बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा है। यहाँ के रास्ते इतने पुरखतर हैं कि ड्राइवर की मामूली सी गलती से भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है और माजी में यहाँ ऐसे कई हादसा पेश भी आ चुके हैं। मौसम सरमा में ये रास्ता अक्सर बंद रहता है, कई अफराद दरमांदा हो जाते हैं। जोजिला पास हमेशा करगिल और गांदरबल इंतजामिया के लिए दर्दसर रहता है। 21 नवंबर को भी मौसम अचानक खराब हो गया और सोनमर्ग से आने वाली गाड़ियां यहां फंस कर रह गईं। फिर क्या था? ये वक्त दरमांदा अफराद के लिए बड़ी आजमाइश वाला रहा। तहम मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से मुश्किल में फंसे इन अफराद को बचा लिया गया। इन्हें आर्मी कैंप गोमरी पहुंचाया गया, बाद में इन्हें द्रास मुंतकिल किया गया। कड़ाके की इस ठंड में मुसाफिरीन और ड्राइवर्स बेहद परेशान हैं। इनमें से कई अफराद बीमार तक पड़ गए हैं। दरमांदा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इन परेशान हाल अफराद के मसाइल को उजागर करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पहुंचकर यहाँ के हालात का जायजा लिया। टीम के अरकान को बाज़ मुकामात पर तो 4 फीट बर्फ में भी चलना पड़ा है। लोगों ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपका मीडिया वालों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, नेटवर्क 18 वालों की तरफ से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो आप इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत, इतनी सर्दी झेल के आप हमारे तक पहुँचे हो। तो अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया, अभी तक हमारे पास और कोई नहीं आया, वरना यहाँ का प्रशासन है जो वो हमारे पास जाता रहा। उन्होंने हमारी पूरी हर तरीका की हेल्प की है। एक में नहीं, सब आदमी बीमार है। यहाँ ये सर्दी, इतना टेम्परेचर माइनस देखकर तो वैसे ही डर कर लोग बीमार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों के, मजदूर लोग हैं, इनके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि जिससे ये यहाँ रह सके। हमारी गाड़ियाँ यहाँ फंस चुकी हैं, अमीना मार्ग में फंसी हुई है। यहाँ पे गाड़ियों को सुविधा नहीं है निकलने वाली। यहाँ से हमें कोई निकाला जाए, यहाँ कोई रास्ता खुले जाए। हमारे पास गाड़ियों में तेल खत्म हो गया। 15 दिन से हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 15 दिन से? 30 आदमी करीब लेबर के फंसे हुए हैं यहाँ 10 दिनों से। जी हमें इन्होंने बहुत हमारी हेल्प भी की है, हमें कमरे भी दिए, बिस्तरा भी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन मजबूर है सर। जो कमाया था पहले वो खर्चा भी हो गया, मजदूर आदमी है, क्या करेंगे सर। रिक्वेस्ट करते हैं कि सर किसी भी तरीके से हमें जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाला जाए। मकामी इंतजामिया की जानिब से दरमांदा मुसाफिरीन को हर मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। लोगों के लिए रहने, खाने पीने और दवाओं का खास इंतजाम किया गया है और सबसे अहम बात कि उन्हें गर्म मलबूसात भी फराहम करवाए गए हैं। उर्दू 18 की माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस कड़ाके की सर्दी में यहाँ आकर जितने भी यहाँ से ट्रेनिंग पैसेंजर्स और ड्राइवर्स फंसे हुए हैं उनकी भरपूर मावनत की और हमारे साथ दिया, और हम भी इनकी भरपूर मावनत कर रहे हैं जितना हमारे से हो सके। जैसे ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला कि भाई इनको राशन वगैरह, हीटिंग वगैरह, मेडिसिन वगैरह का देने का, हमने इनका भरपूर मदद किया है और हर लिहाज में। और टूरिज्म डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया। हालांकि दरमांदा अफराद को मकामी इंतजामिया से कुछ राहत जरूर मिली है, ताहम वो जल्द से जल्द अपनी मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों ने बिला ताखीर रास्ते बहाल करने की अपील की है। श्रीनगर लेह कौमी शहरा में दर्रे जोजिला हमेशा एक रुकावट रहा है और आए दिन इसमें इंसानी जान चली जाती है।
वहीं पर 15 दिन से फंसे इन मुसाफिरों को मीनामर्ग के कड़ाके की सर्दी यानी कि -30 डिग्री से द्रास मुंतकिल किया गया है, जहां इस वक्त -25 डिग्री दर्जा हरारत है। वहीं इन मुसाफिरों का यही कहना है कि इन्हें जितना हो सके जल्दी अपने आबाई गांव या शहर भेजा जाए। कारगिल से मैनुल इस्लाम, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला पुलवामा में बिजली की कटौती में काफ़ी इजाफा हो गया है। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ दिही इलाकों में अक्सर शाम के वक्त बिजली मुतासिर रहती है। जिले के दूर इफ्तादा इलाकों में बिजली का काफ़ी बुरा हाल है। इन इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी काफ़ी खस्ता हो गया है। सरवा में बिजली ट्रांसफार्मरों के ख़राब होने से भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता है। सब जिला त्राल में बिजली के गैर ज़रूरी कटौती की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। महकमा बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने बताया कि इलाके को माकूल बिजली सप्लाई फराहम की जा रही है। उनका कहना है कि ओवरलोडिंग की वजह से बिजली में कटौती हो रही है। उन्होंने लोगों से बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब महकमे ने लोगों की सहूलियत के लिए त्राल में ही एक वर्कशॉप कायम किया है। जो भी यहाँ के लोग हैं वो बड़े एजुकेटेड लोग हैं। त्राल माना जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में 10 नंबर पर त्राल के जो लोग होते हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं हर एक में, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इसमें कॉपरेट करें। अपने हर एक अपने घर में देखे कि मुझे क्या एग्रीमेंटेड लोड है, किस तरह से उसका इंटरनल कॉन्शियस जो है वो तो थोड़ा वो उसको जुगाना है ताकि मेरा हमसाया मुझसे सफ़र न करे। तो इसलिए मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इतना लोड कंज्यूम करे जितना कि उनको हमारे साथ एग्रीमेंट है। जो इसमें स्नो डैमेज में जो भी मसला होता है, चाहे कहीं पे कोई लाइन डैमेज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, उसमें हमने त्राल में एक स्पेशल एक वर्कशॉप खोला है ताकि त्राल के कंज्यूमर जो है, जो डिस्ट्रिक्ट त्राल सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के जो भी कंज्यूमर है उनको जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफार्म जो भी डैमेज हो रहे हैं वो हम अच्छी तरह से उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। महकमा बिजली के एसी पुलवामा शोपियां सर्कल का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान लोड शेडिंग की वजह से बिजली कटौती में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पामपुर के रिसीविंग स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर में खराबी पैदा होने से पामपुर के कुछ इलाकों में बिजली कटौती बढ़ाई गई है। एसई ने कहा कि महकमा एक हफ्ते के अंदर ट्रांसफार्मर की मरम्मत करेगा। इसमें कटेलमेंट थोड़ी बढ़ गई। अब हमने क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर पे लोड चला रहे हैं हम, इसमें से अगर हम पहले 18 घंटे उनको पावर देते हैं, अब 9 घंटे उनको पावर मिलेगा। हर एक घंटे का काट मिलता है। इसकी वजह से थोड़ा उनको काट ज़्यादा बढ़ा है। जब तक कि वो ट्रांसफार्मर हमारा उनको एक हफ्ते के लिए हम रिक्वेस्ट करें लोगों को, एक हफ्ते के लिए वेट करें। हीटिंग गैजेट्स लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सपोज ब्लैंकेट्स हैं, घर में आता है पावर। गैस की तरह उनको लाइन में नहीं जाना पड़ता है कि पावर लाने के लिए, गैस में बाहर जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। यहाँ इनको घर में बेड में बैठ के पावर कमल यूज़ करते हैं, ब्लोवर यूज़ करते हैं, हीटर्स यूज़ करते हैं, गीज़र्स यूज़ करते हैं। बिकॉज नीड है यहाँ पे, इतनी सर्दी भी होती है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं अगर लोग थोड़ा कटेल अपना कम करते हैं ना हीटिंग गैजेट्स, तो हमें इतनी कटेलमेंट नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गोलाबारी की है। जम्मू में मुख्तलिफ स्कूलों के 450 बच्चों ने मुसव्विरी के एक मुकाबले में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस मुकाबले में जम्मू ज़िले के 55 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबले का उन्वान हमारा देश हमारी शान था। बच्चों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए हुबुल वतनी से मुतल्लिक़ तस्वीर बनाई। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे मुकाबलों से न सिर्फ बच्चों में हुबुल वतनी का जज्बा मज़ीद मजबूत हो जाता है, बल्कि उनकी सलाहियतों को उभारने का भी मौका फराहम होता है। इससे एक तो बच्चों के अंदर उनकी कला को निखारने का मौका मिलेगा उनको, दूसरा राष्ट्र के प्रति उनके अंदर एक भावना पैदा की जा सके ताकि वो। वादी कश्मीर में हर साल प्राइवेट स्कूल हर जमात के तलबा की किताबें और उनकी सीरीज़ तब्दील करते हैं। ये किताबें अगले साल किसी दूसरी जमात के तालिब इल्म के काम नहीं आती है। प्राइवेट स्कूल के इस रवैये पर वालिदैन बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल उनसे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, दूसरी जानिब हर साल हर जमात के लिए नई किताबें खरीदने के नाम पर उन्हें दो हाथों लूट रहे हैं। किताबों पर मुकर्रर कीमत से ज़्यादा कीमत वाली टिकट भी लगाई जा रही है। वालिदैन ने गवर्नर इंतज़ामिया और महकमे तालीम से अपील की कि इस मसले को संजीदा होकर नोटिस में लिया जाए। बच्चे त्रावान प्राइवेट स्कूलस मजूर करान त्रावान प्राइवेट स्कूलस
मे समझ कम से कम प्राइवेट स्कूल सेकिस तच किताब 4-5 सास रुपये हमसायस हेवान किताब बेकिस हेवान प्रान लागान करान तो कड़ान ज़्यादा प्रत वरी किताब बदलावान गुजारिश करान डायरेक्टर सब स्कूल एजुकेशनस मेहरबानी कर अत पे करतन खास तवज्जो। गवर्नमेंट को इस मसले को अपने नोटिस में लेना चाहिए कि ये जो मसला दरपेश है इस वक्त वालिदैन के सामने, ये एक बिज़नेस पॉइंट बन गया कि हर साल किताबें चेंज होती जा रही है, सिलेबस चेंज होता जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से इस चीज़ को सख्ती से नोटिस ले इस चीज़ की। ये जो प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, इनके मैनेजमेंट्स या इसके ओनर्स है, ये हर साल बच्चों के निसाब या किताब की सीरीज़ जो है चेंज करते हैं। ये एक बड़ा बिज़नेस का ट्रेंड बनी हुई है इधर कश्मीर में। हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या जो बोर्ड हुकाम है, जो इससे वाबस्ता इंतज़ामिया है, इनके हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। आगे हमारी नोटिस में ली है, कम्यूनिटीज़ में देखी बाज़ाब्ता विदिन 2 वीक्स वो उसमें ये रिपोर्ट करके तो वी विल जस्ट हैव ए कंसल्टेशन उसमें किस तरीके से हम आगे इस प्रोसेस को ले जाएंगे, तो इस मसले का हम अजाला करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपोरा में जिला इंतजामिया की जानिब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हवाले से एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। डीसी बांडीपोरा शहबाज अहमद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। एडीसी बांडीपोरा ज़हूर अहमद मीर, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद भी मौजूद रहे। इस पेंटिंग नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कुलगाम में गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्करों के लिए पेंशन स्कीम के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में शुरा को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से वाकिफ कराया गया। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने वर्करों को सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होने का मशवरा दिया। ज़रा तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर की सदारत में कहचराई अराजी के मुआवजे के हवाले से जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। अराजी से हासिल की गई रकम को गाँव की फलाही के लिए वक्फ करने पर जोर दिया गया। पुलवामा जेल कॉम्प्लेक्स में कैदियों के लिए खसूसी मेडिकल के कम ड्रग डी एडिक्शन कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने कैदियों का इलाज व मुआवजा किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा ने किया। कश्तवाड़ में डीसी ने एक मीटिंग में हालिया मुनक्किदा बैक टू विलेज मुहिम का जायजा लिया। डीसी ने मुहिम में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने वाले अफसरों से फीडबैक हासिल किया। अफसरों ने बताया कि उन्हें ज़मीनी सतह पर लोगों का अच्छा रद्दमल मिल रहा है। इस मौके पर डीसी ने कहा कि लोगों ने जो मसाइल उठाए हैं उसके हल के लिए इक़दाम किए जाएं। तेलंगाना के शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर की आबरूरेज़ी और कत्ल वाक़े के खिलाफ कठुआ में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने की मांग की। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ में वक्त हो गया है हमारी खसूसी पेशकश डुगर खबरा।